کیا خواجہ سرا سے نکاح واقعی حلال ہے؟ والدین آخر حجڑے کی پیدائش کیوں چھپاتے ہیں؟ حیران کر دینے والے انکشافات۔ ایک شخص حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، لرزتی آواز میں عرض کی، اے امیر المومنین، مجھے ایک خواجہ سرا سے محبت ہو گئی ہے اور اب میں اس سے نکاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے، جسے اردو میں خواجہ سرا، ہجرا یا خسرہ کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں انہیں مخنث کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہیں کیا؟ شادی شدہ جوڑوں میں وہ کون سی تخلیقی غلطیاں یا نقائص ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر ان میں رکھے ہیں؟ جیسے کچھ لوگ جسمانی طور پر معذور ہوتے ہیں، ویسے ہی کچھ انسان پیدائشی طور پر مختلف جسمانی ساخت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو معذوری کے باوجود عقل و شعور رکھتے ہیں، ان کا امتحان صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ اسی طرح خنثی مشکل یعنی وہ انسان جن میں مرد اور عورت دونوں کی علامات برابر ہوں، ان کا نکاح شرعاً جائز نہیں۔ البتہ خنثی غیر مشکل یعنی وہ جن میں مرد یا عورت کی علامات واضح ہوں، ان کے لیے شریعت میں الگ احکام موجود ہیں۔ بعض لوگ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ خواجہ سرا ایک الگ مخلوق ہے یا وہ کسی خاص عمل سے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ یہ محض بے بنیاد باتیں ہیں۔ اسلام کے مطابق خواجہ سرا کوئی الگ مخلوق نہیں، بلکہ یہ ایک جسمانی عارضہ رکھتے ہیں۔ اسی بات کو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے۔ معروف سائنسدان ہیری کلائن فلٹر نے ایک بیماری دریافت کی جسے کلائن فلٹر سنڈروم کہا جاتا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق خواجہ سرا کوئی الگ جنس نہیں، بلکہ مرد و عورت کے جینیاتی نظام میں خرابی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کی صورت میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے کوئی بچہ اندھا، گونگا یا بہرا پیدا ہو سکتا ہے، اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی کی تعداد میں عدم توازن کی وجہ سے بھی بعض اوقات بچے کی جنس کا تعین واضح نہیں ہوتا اور وہ پیدائشی طور پر اب نارمل پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کرومیٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کرومیٹین پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کروموسومز کی تبدیلی کے دوران مردوں میں ایک زائد کرومیٹین ایکس شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں 46 کے بجائے 47 کرومیٹین پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد یہ زائد کرومیٹین پیدا کرتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کروموسوم باپ کی طرف سے ایکس یا وائی دونوں کی شکل میں آئے تو جنس کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ ماں کی طرف سے ہمیشہ ایکس کروموسوم ہی آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس یا وائی میں سے کوئی ایک آتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے دونوں ایکس اور وائی کروموسومز آ جائیں تو وہ ماں کے ایکس کروموسوم کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں جس کی ساری زندگی سزا بچے اور ماں کو بھگتنی پڑتی ہے، حالانکہ یہ خرابی باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے امام ابو الفریح توسی نے اپنی کتاب تحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا، ہجرے جنات کی اولاد ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جب آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو شیطان عورت کی طرف مرد سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اس دعا کی برکت سے شیطان انسان یا اس کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن کریم کی سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔
अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ कि क्या ख्वाजा सरा हजड़े से शादी की जा सकती है या नहीं। बात यह है कि ख्वाजा सरा कोई अलग मखलूक नहीं है, बल्कि वो भी इंसान ही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि बाज़ उनमें से मर्दाना सफ़ात से महरूम होते हैं और बाज़ में ज़नाना सफ़ात गालिब होती हैं। ये दरअसल तख्लीकी ऐब या नक़ाइस है जो अल्लाह ताला ने इम्तहान के तौर पर उनमें रखे हैं। जैसे बाज़ लोग जिस्मानी तौर पर माजूर होते हैं, ऐसे लोग जो अक्ल और शऊर रखते हैं उनका इम्तहान सब्र का इम्तहान होता है। अब शरीयत के मुताबिक अगर कोई शख्स खुनसी मुश्किल हो, यानी जिसमें मर्द और औरत दोनों की अलामतें बराबर हो, तो उसका निकाह शरअन जायज़ नहीं। अलबत्ता अगर कोई खुनसी गैर मुश्किल हो, यानी उसमें मर्दाना सिफात गालिब हो, तो वो किसी औरत से निकाह कर सकता है, और अगर उसमें जनाना अलामात गालिब हो तो वो किसी मर्द से निकाह कर सकती है। यानी शरीयत ने इनके लिए भी वाज़ेह और मुनसिफाना अहकाम मुकर्रर किए हैं। एक दिन एक शख्स बाबुल इल्म अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजह अल करीम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरा भाई एक ख्वाजा सरा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। जब हमने उसे इस मकरूहा अमल से रोकने की कोशिश की तो इसने इस हजरे से शादी कर ली। अब आप बताइए, क्या ये निकाह जायज़ है? जब ये मामला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने पेश किया गया तो आपने इस ख्वाजा सरा को बुलाया और दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुम्हारी मुशाबहत मर्दों जैसी है या औरतों जैसी। ख्वाजा सरा ने जवाब दिया कि मुझ में मर्द और औरत दोनों की खुसूसियात पाई जाती है। मुझे हैज़ भी आता है और मैं मर्दों की तरह भी जिंदगी गुजारता हूँ। एक दिन यहूदियों का एक गिरोह भी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास आया। वो आपके इल्म व दानाई के मकाम से वाकिफ थे, मगर दिलों में हसद और तकब्बुर लिए हुए आए। उनका मकसद ये था कि किसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इल्मी मैदान में शिकस्त देकर मुसलमानों को शर्मिंदा करें, ताकि दुनिया में यहूदियों का रौब कायम हो। इस जमात ने एक मंसूबा बनाया कि हम सवाल कुरान से नहीं बल्कि अपनी आसमानी किताब तौरात से करेंगे, ताकि हज़रत अली को उलझा सके। वो मिन ही मिन खुश थे कि अगर हज़रत अली के नाम पर हमारी शर्त मान भी लें तो यही हमारी जीत होगी। लेकिन नाज़रीन, वो इस हकीकत से नावाकिफ थे कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो हस्ती हैं जिन्हें बाबुल इल्म कहा जाता है। वो जिनके सीने में कुरान, तौरात, ज़बूर और इंजील का इल्म यकसां तौर पर रोशन है। यहूदियों का ये गरूर ज़्यादा देर ना टिक सका, क्योंकि जब हज़रत अली ने तौरात की रोशनी में उनके सवालात के जवाबात दिए तो वो हैरत और शर्मिंदगी से एक दूसरे का मुंह तकने लगे और आखिरकार तस्लीम कर लिया कि अली का इल्म इलाही इल्म है, जिसे शिकस्त देना नामुमकिन है। नाजरीन, यहूदियों की इस जमात का सरबराह रसूल जालूत नामी शख्स था, जो अपनी क़यादत में ये गिरोह लेकर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की खिदमत में हाजिर हुआ। रसूल जालूत ने कहा, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हमने आपके इल्म व फ़हम का बहुत चर्चा सुना है। हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने मुस्करा कर फरमाया, तो क्या तुम इस बात की तस्दीक करने आए हो? रसूल जालूत ने जवाब दिया, हम आपसे चंद सवालात करेंगे, मगर आपको इन सवालों के जवाबात हमारी किताब तौरात से देने होंगे, और अगर आप हमारे तमाम सवालों के दुरुस्त जवाब दे दें तो हम सब के सामने आपको बाबुल इल्म तस्लीम कर लेंगे। हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने तबस्सुम फरमाकर जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि तुम क्या सवाल करने वाले हो, मगर अगर मैं तुम्हारे सवालात के जवाबात दे सका तो क्या तुम इस्लाम कबूल करोगे? यहूदियों ने इस शर्त पर रजामंदी जाहिर की कि अगर उनके तमाम सवालों के जवाबात उन्हें तौरात से मिल गए तो वो यहूदियत छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे, और ये बात इस बात की दलील होगी कि जिनसे आपने इल्म हासिल किया है वो अल्लाह के सच्चे नबी है। नाज़रीन, अब तमाम शराइत तय पा चुकी थी, मजमा साकित था और माहौल में सनसनी फैल चुकी थी। इल्म के गरूर में डूबा हुआ यहूदी आलम रसूल जालूत मजमा की तरफ मुतकब्बिराना अंदाज में देखकर बोला, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के लिए नहीं है? यहूदियों को यकीन था कि मुसलमानों की किताब में तो ये लिखा है कि हर चीज़ अल्लाह के लिए है, इसलिए हज़रत अली के लिए इस सवाल का जवाब देना नामुमकिन होगा। मजमे में बैठे लोग हैरत में डूब गए कि आखिर कायनात में ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो अल्लाह के लिए ना हो। लेकिन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के फरमाया, तुम जानते हो वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के लिए नहीं है? वो है शिर्क। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किस्म के शिर्क से पाक है। हज़रत अली के ये अल्फाज गूंजे तो पूरा मजमे सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह,
की सदाओं से गूंज उठा और यहूदी आलिम रसूल जालूत हैरत ज़दा रह गया। अब रसूल जालूत ने दूसरा सवाल किया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फौरन जवाब दिया कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। रसूल जालूत बोला, जवाब हमारी किताब तौरात से दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क्या तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उसने जवाब दिया, मैं 7वीं आसमान से आया हूँ। फिर दूसरा फरिश्ता ज़मीन के 7वें तबक से आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे करीब कौन था? उसने कहा, मेरे करीब मेरा रब था। पहले फरिश्ते ने भी यही कहा, मेरे करीब मेरा रब था। बस ये साबित हुआ कि बुलंदियों की इंतहा हो या गहराइयों की इंतहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह मौजूद है। ये सुनकर पूरा मजमा हैरान रह गया। रसूल जालूत के चेहरे पर परेशानी के आसार जाहिर होने लगे, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके अपने सहीफे से जवाब दे दिया था। फिर उसने तीसरा सवाल किया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के करीब नहीं है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जुल्म एक ऐसी चीज़ है जो मेरे रब के करीब नहीं है। अब रसूल जालूत ने पहली शिकस्त के बाद अपने सवालों का जाविया बदल दिया और इल्मी सवाल के बजाय तारीखी व साइंसी मौज़ूआत की तरफ रुख कर लिया। तकब्बुर भरी आवाज़ में उसने पूछा, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो चश्मा बताओ जो ज़मीन पर सबसे पहले जारी हुआ। हज़रत अली ने फौरन जवाब देने के बजाय कहा कि पहले बताओ तुम्हारे दिल में क्या है। और जब रसूल जालूत ने बेसाख्ता इकरार किया कि उसके दिल में ख्याल यही है कि वो चश्मा बैतुल मुक़द्दस की एक चट्टान के नीचे है, तो हज़रत अली ने फरमाया कि आज अपनी इस्लाह कर लो। ज़मीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो नहीं जो तुम समझते हो, बल्कि वो चश्मा है जिससे हज़रत कदीर अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आबे हयात जारी हुआ। रसूल जालूत के चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हुए तो इसने एक और तारीखी सवाल कर डाला कि ए अली, वो कौन सा पत्थर है जो आसमान से पहली बार उतारा गया? हज़रत अली ने जवाब देने से पहले फरमाया कि तुम लोगों के जहनों में जो पहला पत्थर बैतुल मुक़द्दस में नस्ब है वही है, मगर तुम ये क्यों भूल जाते हो कि खाना-ए काबा बैतुल मुक़द्दस से कहीं ज़्यादा कदीम है, और वही पहला पत्थर इस वक्त नस्ब हुआ जब खाना-ए काबा पहली बार तामीर हुआ था, यानी असल पहला पत्थर वही है। यहूदी सरदार रसूल जालूत और उसके साथी हज़रत अली के दलाइल और हवाला जात सुनकर खामोश रह गए, क्योंकि आप न सिर्फ सवालात के इल्मी और तारीखी जवाब दलील के साथ दे रहे थे, बल्कि उनके अंदर तस्हीह और रहनुमाई भी कर रहे थे। यूं मजमा में हैरत और सिदक की कैफियत छा गई और रसूल जालूत के तमाम इक़दामात और मगरूराना मंसूबे नाकाम हो गए। अब रसूल जालूत ने एक नया साइंसी सवाल किया और बड़े गरूर से पूछा, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती हैं? हज़रत अली ने बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के फरमाया, अगर तुम अपने हवास पर गौर करो तो खुद ही जवाब समझ जाओगे। रसूल जालूत ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? हज़रत अली ने फरमाया, कोई दिन दूसरे दिन के बराबर नहीं होता, इसी तरह कोई रात अगली रात के बराबर नहीं होती। यही वो दो चीज़ें हैं जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती हैं। ये जवाब सुनकर रसूल जालूत के चेहरे पर हैरत छा गई, मगर इसने फौरन अगला सवाल किया, जिंदा रहने की पहचान तो सांस लेना है, तो क्या कायनात में कोई ऐसी चीज़ भी है जो सांस लेती है मगर जिंदा नहीं? हज़रत अली ने जवाब दिया, सुबह जब निकलती है तो सांस लेती है, हालांकि ना इसके पास रूह है ना जान। मजमा पर खामोशी छा गई। रसूल जालूत बौखला कर तेजी से बोला, ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहां सूरज की किरणें एक बार तो पड़ी थी लेकिन दोबारा कभी नहीं पहुंच सकी। हज़रत अली ने फरमाया, हाँ, वो समंदर की वो जगह है जहां से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजरी थी, जब अल्लाह के हुक्म से समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। उस वक्त सूरज की किरणें इस जगह जरूर पड़ी थी, मगर जैसे ही समंदर दोबारा बंद हुआ, इस मकाम पर सूरज की रोशनी कभी दोबारा न पहुंची। ये सुनकर रसूल जालूत के औसान खता हो गए और पूरा मजमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म, फ़हम और दलील की गहराई पर दंग रह गया। जवाब पाते ही रसूल जालूत ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक और सवाल किया कि ये बताइए वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं, और वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं।
حضرت علی نے فرمایا آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گی، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتی ہیں، اور موت اور زندگی کو تلاش کرو تو تمہیں کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ رسول جالوت نے اگلا سوال کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اس کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ سے سوال کیا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ پھر رسول جالوت نے پوچھا کہ بیت اللہ کا تو انسان طواف کرتے ہیں، مگر وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ وہ کشتی نوح تھی جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، اور اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ یہ سن کر رسول جالوت دم بخود رہ گیا۔ اس نے مزید کئی سوال کیے مگر حضرت علی نے ہر سوال کا جواب بغیر کسی توقف کے بالکل درست دیا۔ مجمع میں بیٹھے ایک یہودی نے حیرت سے کہا کہ حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کر جواب دیتا ہے مگر آپ تو ہر سوال کا جواب فوراً دیتے ہیں۔ حضرت علی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ یہودی نے فوراً کہا 5۔ حضرت علی نے فرمایا، تم نے بھی تو فوراً جواب دیا۔ اس نے کہا، یا علی یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ حضرت علی مسکرا کر بولے، مجھے بھی یہ سارے علوم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم حضرت علی کے پاس کائنات کے رازوں کا علم موجود ہے۔ جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک مل گئے تو رسول جالوت سمیت تمام یہودیوں نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب پھر نہیں، ایک دفعہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کے 17 اونٹ اس کے 3 بیٹوں میں اس طرح تقسیم کیے جائیں کہ بڑے بیٹے کو کل تعداد کا آدھا حصہ ملے، درمیانے کو 1/3 اور سب سے چھوٹے کو 9واں حصہ۔ باپ کے انتقال کے بعد تمام عقلاء سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ تقسیم ممکن کیسے ہو، کیونکہ 17 اونٹ ان حصوں میں پورے نہیں بٹ سکتے تھے۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ عرض کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنا 1 اونٹ ان 17 میں شامل کیا تو کل اونٹ 18 ہو گئے۔ آپ نے تقسیم شروع کی، بڑے بیٹے کو کل اونٹوں کا آدھا یعنی 9 اونٹ دیے، درمیانے بیٹے کو 1/3 یعنی 6 اونٹ دیے، اور چھوٹے بیٹے کو 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دیے۔ اس طرح کل 17 اونٹ مکمل تقسیم ہو گئے اور 1 اونٹ بچ گیا۔ حضرت علی نے اپنا اونٹ واپس لے لیا اور فرمایا، دیکھو اللہ کی حکمت اور عدل کے ساتھ ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ پھر اسی مجلس میں ایک خواجہ سرا کا مسئلہ پیش ہوا جس نے نکاح کر رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کے جسم کی ساخت دیکھو اور دونوں طرف کی پسلیاں گنو، اگر بائیں جانب کی پسلی 1 کم ہو تو اسے مرد سمجھا جائے گا ورنہ عورت۔ جب گنا گیا تو بائیں طرف کی 1 پسلی کم نکلی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کا اپنی بیوی سے نکاح منسوخ کر دیا جائے، کیونکہ یہ نکاح شریعت کے اعتبار سے درست نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے بعد لوگ آپ کے علم، عدل اور بصیرت پر حیران رہ گئے، کیونکہ جہاں عام لوگ الجھن میں پڑ جاتے وہاں آپ لمحوں میں ایسا فیصلہ فرماتے جو عقل، شریعت اور فطرت تینوں کے عین مطابق ہوتا۔ اسی دوران ایک اور شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی، میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے مگر ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچے کو نہلایا جائے، پھر دیکھو کہ پیشاب کہاں سے آتا ہے، اگر پیشاب مردوں کے مقام سے آتا ہے تو وہ لڑکا ہے، اور اگر عورتوں کے مقام سے آتا ہے تو وہ لڑکی۔ جب ایسا کیا گیا تو معاملہ صاف ہو گیا اور سب نے کہا کہ واقعی علی کا علم خدائی علم سے منور ہے۔ ناظرین، یہ وہی حضرت علی ہیں جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم کہا، یعنی علم کا دروازہ۔ آپ نے اپنی پوری زندگی عدل، انصاف اور علم کے ذریعے لوگوں کی اصلاح میں گزاری۔ آپ فرماتے تھے کہ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کو تمہیں سنبھالنا پڑتا ہے۔ حضرت علی کے فیصلے نہ صرف اس دور میں بلکہ آج کے جدید سائنسی دور میں بھی عدل و فہم کی اعلیٰ مثال ہیں۔ ان کے علم کی گہرائی،
का ये आलम था कि दुनिया के बड़े से बड़े दानिश्वर भी इनके सामने लाजवाब हो जाते थे और कहते थे कि वाकई ये वो हस्ती है जिन्हें इल्म नबवी का वारिस बनाया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हैरत अंगेज फैसलों में से एक और वाक़या बहुत मशहूर है। एक मर्तबा दो औरतें आपकी खिदमत में हाजिर हुई। दोनों एक ही बच्चे पर अपना हक जताने लगी। हर एक कहती थी कि ये बच्चा मेरा है। मामला इतना उलझ गया कि लोग फैसला ना कर सके और आखिरकार हजरत अली के दरबार में पहुंचे। आपने दोनों औरतों की बात सुनी, फिर फरमाया कि अगर तुम दोनों उस बच्चे पर दावा करती हो तो अब फैसला तलवार करेगी। गुलाम को हुक्म दिया कि तलवार लाओ ताकि बच्चे को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। ये सुनते ही एक औरत चीख उठी और रोते हुए बोली, या अली, इसे मत काटिए, ये बच्चा इस औरत को दे दीजिए। हजरत अली ने फौरन फरमाया कि यही इस बच्चे की असल माँ है, क्योंकि एक माँ कभी अपने बच्चे को मरता नहीं देख सकती। नाजरीन, ये सुनकर पूरा दरबार सुभान अल्लाह कह उठा। हजरत अली ने वो बच्चा हकीकी माँ के हवाले कर दिया और फरमाया कि इंसाफ वही है जो फितरत के मुताबिक हो। इसी तरह एक मर्तबा एक शख्स आपके पास आया और बोला, या अली, मेरे पास एक गुलाम है जो मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही माँ से पैदा हुए हैं, लेकिन बाप अलग अलग है। अब आप फैसला करें कि वो सच कह रहा है या झूठ। हजरत अली ने दोनों से पूछा कि तुम्हारी माँ जिंदा है या नहीं। दोनों ने कहा कि जिंदा है। आपने फरमाया कि दोनों अपनी माँ के दूध का कतरा लाओ। जब दोनों कतरे लाए गए तो हजरत अली ने उन्हें धूप में रख दिया। एक कतरा जम गया और दूसरा बह गया। आपने फरमाया कि जो कतरा जमा है वो आज़ाद औरत के दूध का है और जो बह गया वो लौंडी के दूध का। इस तरह साफ जाहिर हो गया कि गुलाम झूठ बोल रहा है। नाज़रीन, ये था हजरत अली का अदल, इल्म और फहम का वो मायार जिसने दुनिया के बड़े बड़े फ़कीहों को हैरान कर दिया। आपके फैसले आज भी काजियों और मुफ्तियान के लिए एक मीनारे नूर है, क्योंकि वो सिर्फ अक्ल से नहीं बल्कि इल्हामी बसीरत से फैसले फरमाया करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में एक ख्वाजा सरा का वाक़या ऐसा पेश आया जिसने पूरे शहर को हैरान कर दिया। हुआ यूं कि एक ख्वाजा सरा हर रोज़ बाजार में आकर औरतों के दरमियान बैठ जाता और उनसे औरतों की तरह बातें करता, लेकिन लोग शक में थे कि ये दरअसल मर्द है या औरत। कई बार लोगों ने उसे समझाया मगर वो बाज ना आया। आखिरकार मामला हज़रत अली के दरबार में पहुंचा। आपने फरमाया कि उसको मेरे सामने लाया जाए। जब वो हाजिर हुआ तो हज़रत अली ने बड़े सुकून से फरमाया कि सच सच बता, तू कौन है, मर्द या औरत? वो ख्वाजा सरा कांपने लगा और बोला, या अली, मैं नहीं जानता मैं क्या हूँ, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर तू खुद नहीं जानता तो मैं अल्लाह के हुक्म से तुझे बताऊंगा। आपने हुक्म दिया कि उसके जिस्म का मुआयना किया जाए। जब मुआयना हुआ तो पता चला कि उसके अंदर मर्दाना और ज़नाना दोनों अलामात पाई जाती हैं, मगर मर्दाना अलामात ज़्यादा गालिब थी। आपने फरमाया कि ये शख्स शरन मर्द शुमार होगा और औरतों के दरमियान बैठना उसके लिए हराम है। फिर आपने फरमाया कि इसे मर्दों की सफ़ में शामिल किया जाए और औरतों के दरमियान जाने से रोक दिया जाए। नाज़रीन, ये फैसला सुनते ही मजमा हैरत में डूब गया कि किस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने एक ऐसे मामले में भी फैसला फरमाया जहां अक्ल इंसानी ठहर जाती है। एक और मौके पर एक ख्वाजा सरा पकड़ा गया जो औरतों के गुस्ल खाने में चुपके से दाखिल होता था। जब मामला हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने लाया गया तो आपने फरमाया कि ऐसे शख्स को सख्त सज़ा दी जाए ताकि दूसरों के लिए इबरत बने। मगर सज़ा देने से पहले आपने उससे पूछा कि तू ऐसा क्यों करता है? वो रोते हुए बोला, या अली, मैं मर्द नहीं हूँ न औरत, मैं सिर्फ लोगों के दरमियान अपने आप को कबूल करवाने की कोशिश करता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की आंखों से आंसू बह निकले और आपने फरमाया कि इंसान की तख्लीक में जो कमी अल्लाह रखता है वो आजमाइश के लिए होती है, तो अल्लाह के बंदों के दरमियान अपने आप को गुनाह के जरिए साबित मत कर। फिर आपने फरमाया कि इसके लिए शहर में एक अलहदा जगह बनाई जाए ताकि ये अपनी इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सके और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। नाजरीन, ये था हज़रत अली का अदल जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि रहमत से भरा हुआ था। आप हर इंसान को उसकी फितरत और कमजोरी के मुताबिक देखते थे और इसीलिए फरमाया करते थे कि अल्लाह ने किसी को ऐबदार पैदा नहीं किया, बल्कि हर ऐब के पीछे इंसान का इम्तिहान छुपा होता है।
ख्वाजा सराओं के बारे में आपने वाज़ेह फरमाया कि जो इनमें मर्दाना अलामात रखते हैं वो मर्दों के अहकाम के ताबे हैं, और जो जनाना अलामात रखते हैं वो औरतों के अहकाम के, और जो दोनों के दरमियान हों उनके लिए मखसूस हुक्म है कि वो इबादत, पर्दे और मुआशरत में अपने गालिब वस्फ के मुताबिक अमल करें। नाजरीन, ये वो अदल, इल्म और फ़हम था जो सिर्फ हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को नसीब हुआ कि जहाँ लोग फतवा देने से डरते थे वहाँ आप दलील, फ़हम और रहम के साथ फ़ैसला फरमा देते थे। एक और हैरत अंगेज़ वाक़या हज़रत अली के ज़माने का है जो इंसान की अक्ल को झंझोड़ देता है। हुआ यूं कि एक ख्वाजा सरा मदीने में रहता था जो बहुत नेक, इबादत गुजार और लोगों के काम आने वाला था, मगर एक दिन शहर में शोर मच गया कि इस पर एक औरत ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये रात के वक्त औरतों के घरों के करीब मंडलाता है। लोग इसे पकड़कर हज़रत अली के दरबार में ले आए। मजमा लगा हुआ था, सब मुंतज़िर थे कि अब मौला अली क्या फ़ैसला फरमाएंगे। आपने बड़ी बुर्दबारी से फरमाया कि पहले गवाहों को बुलाओ। गवाहों ने कहा, या अली, हमने इसे कई बार रात को औरतों के दरवाज़ों के करीब देखा है, मगर कोई बदकारी की हरकत नहीं देखी। हज़रत अली मुस्कुराए और फरमाया कि अगर बदकारी नहीं देखी तो इल्ज़ाम कैसे। फिर आपने इस ख्वाजा सरा की तरफ देखा और फरमाया कि सच बता, तू वहाँ क्या करता है। वो रोते हुए बोला, या अली, मैं औरतों के दरवाज़ों के पास इसलिए जाता हूँ कि उनके शौहर जहाद पर गए हुए हैं, वो तन्हा है। मैं उन्हें पानी भरने, लकड़ियाँ उठाने और ज़रूरत की चीज़ें देने जाता हूँ ताकि कोई दूसरा मर्द उनके करीब ना जाए। हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया कि लोग अक्सर ज़ाहिरी चीज़ें देखकर फैसला करते हैं, मगर अल्लाह दिलों के हाल जानता है। फिर आपने फरमाया कि आइंदा तो दिन में औरतों के काम कर दिया कर, रात को जाने की ज़रूरत नहीं। नाजरीन, अभी ये वाक़या ख़त्म भी ना हुआ था कि एक दूसरा मुकद्दमा पेश किया गया। एक ख्वाजा सरा पर इल्ज़ाम था कि इसने एक मर्द से निकाह किया है और दोनों मियाँ बीवी की तरह रहते हैं। लोग कहने लगे, या अली, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। आपने फरमाया कि सब्र करो, पहले सच्चाई मालूम कर ली जाए। फिर आपने फरमाया कि दोनों को मेरे सामने लाया जाए। जब वो हाजिर हुए तो हज़रत अली ने उन दोनों से अलग अलग सवाल किए। पहले मर्द से पूछा कि तूने उससे निकाह क्यों किया। उसने कहा, या अली, मैंने उसे औरत समझकर निकाह किया था। ये निकाब ओढ़कर औरतों में उठता बैठता था। फिर आपने ख्वाजा सरा से पूछा कि तूने खुद को औरत क्यों जाहिर किया। वो रोते हुए बोला, या अली, मैंने कभी खुद को औरत नहीं कहा, लोग ही मुझे औरत समझ लेते थे क्योंकि मेरी आवाज़ और चेहरा औरतों जैसा है। मैंने निकाह की बात से इनकार किया था, मगर ये शख्स बज़िद था। हज़रत अली ने फरमाया कि ये निकाह बातिल है क्योंकि फितरी फ़र्क वाज़े नहीं था। और फिर आपने ऐलान फरमाया कि कोई भी शख्स ख्वाजा सरा से निकाह नहीं कर सकता जब तक उसकी हकीकत वाज़े ना हो, क्योंकि शरीयत में शुबहा के साथ निकाह बातिल है। नाज़रीन, हज़रत अली के इस फैसले ने फितना ख़त्म कर दिया और लोगों को समझ आ गई कि इस्लाम में फ़ैसला ज़ाहिरी शक्ल पर नहीं बल्कि तहकीक और अदल पर होता है। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह की मखलूक में ख्वाजा सरा भी आजमाइश का हिस्सा है। इन पर जुल्म करना या उनका मजाक बनाना सख्त गुनाह है, और जो उन्हें हकारत की नज़र से देखे वो खुद अल्लाह के गज़ब का शिकार होगा। इसी ज़माने में एक और अजीब वाक़या पेश आया। एक मालदार शख्स मर गया और अपनी जायदाद के हिस्से में अपने ख्वाजा सरा गुलाम का भी जिक्र किया कि मेरा ये गुलाम भी मेरे बेटों के बराबर वारिस होगा। लोग हैरान रह गए कि गुलाम और वो भी ख्वाजा सरा, वारिस कैसे। मामला हज़रत अली के दरबार में आया। आपने वसीयत पढ़ी और फरमाया कि अगर इस गुलाम ने खिदमत में वफादारी की है तो वसीयत जायज़ है, क्योंकि ये मीरास नहीं बल्कि इनाम के ज़मरे में आती है। फिर आपने गुलाम को बुलाया और पूछा कि क्या तूने अपने मालिक के साथ वफादारी की थी। वो बोला, या अली, मैंने उसकी खिदमत अपने माँ बाप से बढ़कर की थी। आपने फरमाया, तू जा, तेरे मालिक का हिस्सा तुझे उसी वफादारी के बदले मिलेगा। नाजरीन, ये था हज़रत अली का अदल, जिसमें ना ज़ात देखी जाती थी ना जिन्स, सिर्फ नीयत देखी जाती थी। इसीलिए आपको बाबुल अलम कहा गया, वो दरवाज़ा जहाँ से इल्म, अदल और रहमत बहती है और जहाँ हर सवाल का जवाब मिलता है। इस्लाम में ख्वाजा सराओं, हजरों को भी विरासत में हिस्सा दिया गया है। अगर वो मर्द के मुशाबे हों तो मर्द का, और अगर औरत के मुशाबे हों तो औरत का हिस्सा पाते हैं। अफसोस कि आज का माशरा उन्हें वो इज़्ज़त व एहतराम नहीं देता जो इस्लाम ने मुकर्रर किया है।
वालिदैन को चाहिए कि ऐसे बच्चों को माजूर समझकर कबूल करे, ना कि घर से निकाले। हुकूमत पर भी जिम्मेदारी है कि इनके लिए रोजगार और मौके फराहम करे ताकि वो भीख मांगने पर मजबूर ना हो। कानून मौजूद है मगर इस पर अमल नहीं किया जाता। ये पैगाम दरअसल लोगों को एहसास दिलाने के लिए है कि ख्वाजा सराओं को भी वही इज्जत व हकूक मिलने चाहिए जो बाकी शहरियों को हासिल है। आखिर में दुआ की गई है कि अल्लाह सबको हर बीमारी से महफूज रखे और ईमान पर फातिमा अता फरमाए।